بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہارر اسٹوری ہے تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہوتا ہے، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ہارر اسٹوری کی طرف۔ آج کی اسٹوری کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ یہ اسٹوری ایک اماں جی کی ہے جن کا نام شربتی خالہ ہے۔ شربتی خالہ دائی کا کام کرتی ہیں اور محلے میں بہت مشہور خاتون ہیں۔ ہر بوڑھا، جوان، بچے بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ خالہ کا پیشہ ہی ایسا ہے، اور تقریباً محلے کے بچے بچیاں زیادہ تر خالہ کے ہاتھوں سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ خالہ کا ایک اسٹائل ہے کہ ایک تھیلا ہر وقت ہاتھ میں رکھتی ہیں اور اس میں چھوٹے بچوں کے لیے ٹافیاں وغیرہ رکھ لیتی ہیں۔ ہر گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ ایک ایک دو دو ٹافیاں دیتی ہیں۔ اس سے چھوٹے بچے خالہ کو گھڑی گھڑی سلام کرتے ہیں ٹافیوں کے لالچ میں، اور دوسرے محلے کے لوگ بھی خالہ کو لے کر جاتے ہیں۔ اور اب یہ بوڑھی بھی ہو گئی ہیں لیکن اپنے کام کی ماہر ہیں، اس لیے لوگوں کے گھر خالہ کا بہت آنا جانا ہے۔ کئی گھروں میں تو خالہ بہت دیر دیر تک بیٹھتی ہیں اور کھانا وغیرہ بھی وہیں کھا لیتی ہیں۔ تو خالہ ایک دن رات کے 12 بجے کسی جگہ سے واپس آ رہی تھیں تو خالہ کی بہو نے بتایا ایک آدمی آیا تھا، وہ آپ کو بلا رہا تھا۔ تو ہم نے کہا خالہ تو باہر ہی نکلی ہوئی ہیں۔ خالہ نے اپنی بہو کو بولا چل چھوڑ، آ جائے گا۔ تو خالہ بتاتی ہیں کہ ابھی میں چرپائی پر بیٹھی تھی تو دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو بہو نے بتایا خالہ وہی آدمی آیا ہے۔ خالہ نے بہو سے بولا کون ہے؟ تو بہو کہنے لگی میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا، آپ دیکھیں اٹھ کے کون ہے یہ۔ تو خالہ کہتی ہیں میں دروازے پر آئی تو اس آدمی نے مجھ سے کہا خالہ میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے ساتھ فوراً چلو۔ خالہ پیسے کی بھی بڑی شوقین تھی اور خالہ فٹ رہتی تھی۔ خالہ نے کہا اچھا کہاں ہے تیرا گھر؟ تو اس آدمی نے خالہ کو بولا یہی 4 گلیاں چھوڑ کے میں رہتا ہوں۔ تو خالہ بتاتی ہیں کہ محلے میں کچھ لوگوں کے اپنے گھر ہیں اور ان لوگوں نے لوگوں کو کرائے پر بھی دیے ہوئے ہیں، تو کرایہ داروں کا تو یہ حساب ہوتا ہے
साल रहे, 2 साल रहे, 5 साल रहे, और फिर किराएदार तो किराएदार होते हैं, वो चले जाते हैं। तो खाला भी यही समझी कि शायद ये भी मोहल्ले में किसी का घर किराए पे लिया हुआ है, और खाला उसके साथ चल पड़ी। खाला बताती हैं कि मेरे घर से 4 गलियां छोड़ के एक बंद गली है, उस गली के पीछे तो थोड़ी सी जगह खाली भी पड़ी हुई है। तो खाला बताती हैं वो आदमी मुझे वहां लेकर गया। रात का टाइम है, क्योंकि खाला बूढ़ी हो चुकी हैं। तो वो खाला को अपने साथ एक घर में ले गया। खाला कहती हैं कि जब मैं उसके घर में दाखिल हुई तो छोटे छोटे बच्चों की आवाजें मुझे आ रही थी, लेकिन बच्चे नहीं नजर आ रहे थे। मुझे एक कमरे में लेकर गया, वहां एक औरत लेटी हुई थी जिसके बच्चा पैदा कराना था। मैंने थैला रखा और अपना काम शुरू कर दिया। वो आदमी मुझे उस कमरे में छोड़कर नजर नहीं आया। मैं ये समझी कि वो जो बच्चे बोल रहे हैं इस घर में, वो उनके पास चला गया। खाला बताती हैं कि मैंने अल्लाह का नाम लेके अपना काम शुरू किया, और उस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। एक नहीं, 2 नहीं, इकट्ठे 7 बच्चों की पैदाइश हुई। तो खाला बताती हैं कि मैंने मजाक में उस औरत को बोला कि अरे तेरे घर में तो पहले ही बच्चों का इतना शोर है, और इतने बच्चे तूने फिर पैदा कर दिए। तू इंसान है या जिन है? अब ये खाला ने मजाक में बात की। तो खाला बताती हैं कि वो औरत हल्का सा मुस्कुराना शुरू हुई, लेकिन वो औरत बहुत कम बोल रही थी। तो खाला कहती हैं मैंने उस औरत को कहा कि अरे मैं तो एक बच्चे की पैदाइश पे इतना कुछ लेती हूँ, तू मुझे क्या देगी? तेरे यहाँ तो एक नहीं, अल्लाह ने 7 बच्चे दिए हैं। वो औरत कहने लगी खाला तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं बहुत कुछ देकर भेजूंगी। खाला कहती हैं मैंने उससे कहा बोला फिर अपने मियाँ को, मैं तो उससे मिठाई और बहुत कुछ लेकर जाऊंगी। तो खाला बताती हैं उस औरत ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा खाला मैं जो तुम्हें दे रही हूं, तुम मेरे साथ एक वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी मारे घर का पता। खाला बताती हैं मैंने फौरन कहा अरे मुझे क्या लेना देना, मैं तो
सैकड़ों घरों में आना जाना मेरा है। कितने किराएदार आए, कितने चले गए, मुझे तो याद भी नहीं है। कितने बच्चे मैंने पैदा करवाए। तू बस मेरे पैसे मुझे दे, मेरी मिठाई मुझे दे। खाला ने फिर कहा, बुला अपने मियाँ को। और मैं क्यों बताऊंगी किसी को? तुझे अल्लाह ने 7 बच्चे दिए हैं, तो ये तो खुशी की बात है। उसने कहा, बस खाला, तुम किसी को मत बताना हमारे घर का पता। खाला बताती हैं, उस औरत ने एक थैला दिया मुझे और कहा, खाला ये ले जाओ, ये थैला किसी संदूक में रख लेना। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो, जितने पैसों की जरूरत हो, तुम बस इसमें से निकाल लिया करना। पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे। खाला ने कहा, तू मुझे खाली थैला दे के टरका रही है, मैं कैसे मान लूं? उसने कहा, खाला इसमें हाथ डालो। तो खाला बताती हैं कि जब मैंने थैले में हाथ डाला तो मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि नोटों से भरा हुआ है ये थैला। खाला कहती हैं, खैर मैंने वो थैला लिया और उसके घर से मैं बाहर निकली, सोचती हुई कि ये कैसे लोग हैं, ये कोई जादूगर हैं क्या है? लेकिन खाला एक लालचन औरत भी थी। पैसे से तो बहुत प्यार है खाला को। खाला ने थैला लिया, बाहर निकली, देखा तो अब सुबह हो चुकी थी। खाला जल्दी जल्दी अपने घर आई और खाला के पास एक पुराना सा बक्सा था। खाला ने फौरन अपने कमरे में दाखिल होते ही वो अपना बक्सा खोला और वो थैला उसमें रख दिया। खाला बताती हैं कि 2-4 महीने के बाद मुझे अपनी बहन की बेटी की शादी में जाना था लाहौर। मैंने रात के टाइम अपना बक्सा खोला और उस थैले में से जब मैंने पैसे निकाले तो खाला कहती हैं, जितनी दफा मैंने थैले में हाथ डाला मेरे हाथों में भर भर के पैसे आ रहे थे। खाला कहती हैं, मैंने पैसे निकाले और फौरन ताला डाला और मैं शादी में लाहौर चली गई और खूब वहां लेन देन किया। खाला बताती हैं, जब मैं लाहौर से वापस आ गई फिर एक आधा केस आ गया, फिर मैं उसमें लग गई। वहां भी बाल बच्चा होने वाला था तो कुछ घरों में खाला मालिश वगैरह करने भी जाती थी। तो खाला बताती हैं कि ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। खाला बातूनी तो बहुत थी, घरों में भी बहुत जाती थी। बाजे घरों में तो खाला दोपहर का खाना भी खा लेती थी। जब तक खाला ने ये राज रखा तो खाला का थैला भरा रहता था। तो दोस्तों, शरबती खाला के साथ
بعد میں کیا ہوا یہ آپ کو پارٹ 2 میں بتائیں گے۔ پارٹ 2 دیکھنا، سننا نہ بھولیے گا، ضرور پارٹ 2 کو سننا۔ شربتی خالہ کے ساتھ پھر ہوا کیا؟ اللہ حافظ۔